Hi friends, today we are going to start with a new chapter, 10th chapter of our Beehive class 9th, Kathmandu. So this chapter is about, it is basically a travel vlog written by Vikram Sethi. In this chapter we are going to see the journey the author is enjoying in Kathmandu, the capital of Nepal. So here we got to know that from the first para, I get a cheap room in the center of the town and sleep for hours. Next day with Mr. Shah's son and nephew, I visit two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. So whenever we travel and we reach a place, we become very tired. Same is happening with the author. He got a cheap room. Cheap means a affordable room in the center of the town, Kathmandu. And now for the very first day, he's sleeping throughout because he is really tired after the journey. And next day with Mr. Shah's son, there must be a person named Mr. Shah's, with his son and nephew. Nephew means Bhatija. With his sons and nephew, he visited two temples of Kathmandu. We all know that Kathmandu is a religious place where all temples, Buddhist temples, Hindus temples are situated. So he visited two temples which were most sacred. Sacred means pavitra. They were more pure Hindu and Buddhist temples. So first we are here having the description of the atmosphere of the Pashupati Nath temple, the Hindus temple, and then we are going to see the description of the Bodhnath Stoop, which is the Buddhist temple. So at Pashupati Nath, outside which a sign proclaimed entrance for Hindus only. So in this temple there is a rule that only Hindus can enter. That we have seen in other cases also, like in Makkah, Medina, only Muslims can visit, or there are some religious places which are restricted to only particular type of religion and caste. So in Pashupati Nath temple also only Hindus can enter. There is an atmosphere of febrile confusion. Febrile confusion means that we all see in a very crowded place, like if we go to a very popular mandir, like if we go to Golden Temple, we see a lot of rush there. We see people pushing each other to go in front of the priest to offer their offerings, and they want in the langar type also we see a lot of basically confusion. Everybody is running. There are hawkers, there's street vendors, priests, devotees, tourists. So everybody was here. Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons, and dogs roam through the ground. So all these people were roaming in the ground. So there is a temple and all of them are in together. We offer few flowers, like हम जब चढ़ाते हैं तो उन्होंने भी कुछ फूल चढ़ाए. There are some worshippers that are being trying to get priest attention are elbowed aside by other pushing their ways to the front. We see when we offer a lot of fruits or flowers, we first give it to priest and then priest offers to the particular deity. So if there are a lot of persons, the priest must be taking random persons to be the first one to give the offering. Most of the people are pushing each other by elbows. They are pushing each other to go in front of the priest and seek their attention. Meanwhile, all of this confusion is happening. A Nepalese princess enters the temple. So we see when the Nepalese prince and princess enter the mandir, the temple, we see all of them, the people who are pushing each other, give a sight to the princess and bows down. When a authority person, when a higher superior person comes to a very crowded place also, the people themselves give a sight to the person and even in respect they bow down. This was happening. And by the main gate, a party of saffron-clad Westerners struggles for the permission to enter. The policeman is not convinced that they are Hindus. So, this temple, Pashupati Nath temple, is a very popular temple. So, some people from Western, outsiders, we can say foreigners, having saffron clothes. Saffron is the color of Hinduism. So with the saffron clothes, they are trying to enter the temple, but the guard or the policeman who is at the entrance of Pashupati Nath temple is not convinced that whether they are Hindu or not. So he is not allowing them to enter in the temple. And this was happening at the entrance gate. Another incident was
a fight breaks between two monkeys. In the third to fourth night, we have seen that cows, monkeys, pigeons, and dogs roam through the ground. So between two monkeys, a fight broke down. One chases the other. एक के पीछे एक भाग रहा है. Who jumps onto the shivling and runs screaming around the temples down to the river, the holy Bagmati. So एक बंदर दूसरे बंदर के ऊपर मतलब उसे चेस कर रहा है. एक बंदर जो है फिर वो शिवलिंग के ऊपर कूद जाता है और वो सीढ़ियों से पूरे मतलब मंदिर में चिल्लाते चिल्लाते सीढ़ियों से नीचे आ जाता है. और उसी मंदिर के नीचे सीढ़ियों पे एक रिवर है जिसका नाम है बागमती. तो ये आपको पशुपतिनाथ टेम्पल. A corpse is being cremated on its bank. So now the author has also come down from the temple to the river bank Bagmati, and he is seeing a cremation. Cremation means देह संस्कार होना. He sees a corpse, एक शव को जलाया जा रहा था. And a washer woman at their work. तो washer woman जो धोबिन होती हैं वो अपने कपड़े धो रहे थे. और children were having bath. From the balcony, a basket of flowers and leaves, old offering now wilted, is dropped into the river. So हम जानते हैं कि whenever we offer something to God, and when it जब वो मुरझा जाता है या फिर अब मतलब खराब हो जाता है, we never throw it to the dustbin. We try to dispose it in the rivers, in holy places. So he is also seeing that some of the offering which is now wilted means मुरझा गई हैं, अब उन्हें नदी में प्रवाहित किया जा रहा है. A small shrine half protrudes from the stone platform on the river banks. When it emerges fully, the goddess will escape, and the evil period of the Kalyug will end on the earth. So this is, we can say, वहाँ पे एक प्रचलित मतलब कह सकते हैं आइडिया है, बिलीव है कि जो रिवर बैंक है बागमती का, उसके साइड ही में एक स्टोन है जिसके अंदर एक श्राइन मतलब एक ऐसी एक वर्शिप की प्लेस. हम बोलते हैं जब हम जाते हैं ट्रेन वगैरह से तो हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे हमें मंदिर दिखते हैं. मतलब हमसे भी छोटे के मंदिर, इसमें एक ही कोई भी डीटी को एज अ मूर्ति हम वहाँ पे स्थापित कर देते हैं. तो वैसे ही रिवर के बैंक पर एक स्टोन के अंदर से एक छोटी सी मंदिर श्राइन निकल रही है. और लोगों का ये बिलीव है कि जब ये मंदिर पूरी स्टोन से बाहर आ जाएगी तो इसके अंदर की जो गॉडेस है शी वुड एस्केप एंड द इविल पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड. तो हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग 4 युग होते हैं, त्रेता, सतयुग, द्वापर और कलयुग. सो अभी कलयुग चल रहा है. तो ये इनका मानना है कि जब ये मंदिर पूरा बाहर आ जाएगा तब कलयुग जो है वो धरती पर खत्म हो जाएगा. तो ये कुछ इस तरीके से है, जैसे कि ये रिवर है, यहाँ पे पत्थर है, तो इसके अंदर से एक छोटी सी ऐसी श्राइन निकल रही है जो अभी पत्थर के अंदर ही है, उसका बस माउंट हमें दिख रहा है. तो ये बिलीव है कि जब ये पूरी ऐसे बाहर आ जाएगी तब कलयुग जो है वो एंड हो जाएगा. नेक्स्ट, नाउ ये सब हमें माहौल मिला पशुपतिनाथ में. हम इसको बस समराइज कर सकते हैं. वहाँ पे फेब्राइल कॉन्फ्यूजन था, लॉट्स ऑफ डॉगीज, मंकीज, काउज, पीपल, टूरिस्ट, ट्रैवलर्स, priests, devotees, everybody was there. There was a fight between monkeys. People were pushing each other for gaining the attention of priests. There was a conversation between the guard and the western saffron party. Now, अब हम बौद्धनाथ स्तूप पे आ गए हैं बोलो. तो at Bodhnath Spoot, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is in contrast. What do you mean by contrast here? Contrast everywhere means a very different situation, a very opposite situation. So contrast. तो इसका मतलब जैसे पशुपतिनाथ में confusion था, maybe this place in contrast is a sense of stillness. मतलब एक तरफ काठमांडू में जहाँ पे बहुत confusion है एक मंदिर में, वहीं दूसरी तरफ बौद्धनाथ स्तूप में बहुत शांति का माहौल है. It is an immense white dome ringed by a road. So it is like a dome like this, and उसके चारों तरफ ऐसे roads है, ठीक है. And it is a white dome ringed by a road. Small shops stand on the outer edge. So मतलब जो road है उसके edge पर कुछ shops है, and which are owned by Tibetan immigrants. Immigrants वो होते हैं जो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में बस जाते हैं. तो Tibetan here means China. जो लोग चाइना के थे वो अब नेपाल में आ गए हैं और वही इन शॉप्स को ओन कर रहे हैं. इन शॉप्स पे क्या क्या मिलेगा? बैग्स मिलेंगे. अब वहाँ पे तिब्बतन लोगों ने ओन किया, तो कुछ वो अपनी चीजें भी बेचेंगे, तो तिब्बतन प्रिंट्स और सिल्वर ज्वेलरी भी वहाँ में मिलेगी. देयर इज नो क्राउड. सो यहाँ पर बिल्कुल क्राउड नहीं है. इट्स अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस.
हेवन मतलब एकदम स्वर्ग है, एकदम शांति है यहाँ पर। इतना जो बिजी है काठमांडू, उसमें ये एक जगह है जहाँ पे आपको बिल्कुल शांति मिलेगी। तो ऐसे उन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया। क्वेश्चन आ सकता है कि गिव द डिस्टिंक्ट एटमॉस्फेयर ऑफ पशुपतिनाथ एंड बौद्धनाथ टेम्पल। तो उसमें आपको ये मेंशन करना होगा कि पशुपतिनाथ कैसे बहुत फेब्राइल कंफ्यूजन था, वहाँ पे क्या क्या इंसिडेंट थे। उसी तरफ बौद्धनाथ कितना शांत, जैसा हेवन। यू कैन यूज सम ऑफ द एडजेक्टिव्स यूज हियर, हेवन ऑफ क्वाइटनेस और वी कैन से सेंस ऑफ स्टिलनेस। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब जो ऑथर है वो हमें काठमांडू की स्ट्रीट्स को डिफाइन करेंगे। दैट काठमांडू इज विविड, मतलब काठमांडू में बहुत कुछ है, एकदम मतलब विविड है। हम बोलते हैं वी कैन से डिस्टिंक्ट चीजें हैं यहाँ पर। मर्शनरी मतलब यहाँ पर कोई भी आदमी अपना काम ढूंढ सकता है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन बहुत ज्यादा है। एंड रिलीजियस, क्योंकि हमने अभी देखा यहाँ पे मंदिर बहुत है, स्तूपा बहुत है, तो एक रिलीजियस प्लेस है। वैसे स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर एडॉर्न डीटीज, मतलब यहाँ पे आपको गलियों गलियों में छोटे छोटे मंदिर, उसके अंदर भगवान की मूर्तियां जो फूलों से सजी है, ये आपको मिल जाएंगी। इवन जो सबसे पतली से पतली गली होगी उसमें भी आपको मंदिर वगैरह मिल जाएगा। With fruit seller, hawkers of postcards, shops selling western cosmetics, film rolls, chocolates और copper utensils and Nepalese antiques। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे स्ट्रीट्स, हम इंडियन स्ट्रीट पे देखते हैं कई सारी चीजें वेंडर्स बेचते हैं, तो यहाँ पे भी फ्रूट सेलर फलों को बेचने वाले, फ्लूट सेलर बांसुरी बेचने वाले, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड जो कार्ड्स लेके चलते हैं, शॉप सेलिंग्स वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स जो हम कॉस्मेटिक्स का सामान है वो भी मिल रहा है, फिल्म रोल्स मतलब सीडी डिस्क वगैरह मिल रहे, चॉकलेट्स, कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपालीज एंटीक्स, मतलब जो नेपाल की प्राचीन तो हम ये बोल सकते हैं ज्वेलरी बोल सकते हैं एंटीक में। अब यहाँ पे उनको स्ट्रीट्स में और क्या सुनाई देता है, यहाँ पे उनको स्ट्रीट में कुछ फिल्म्स के गाने सुनाई देते हैं, कार हॉर्न्स, बाइसिकल रिंग्स, stray cows, vendors shouting their wares। तो vendors shouting their wares means they are attracting people, like we say ना कि हम यहाँ भी सुनते हैं vendors shout कि हमारे से ये ले लो या फिर ये ले लो, तो इसी तरीके से ये लोग वहाँ पे उन्हें ये सुनाई देता है। नेक्स्ट ये बोलते हैं आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, मतलब वो इस सब चीजों में घुल मिल जाते हैं। ही बाय अ बार ऑफ मार्जिपान, मार्जिपान एक स्वीट होता है जो आमंड से बनता है, एंड अ कॉर्न कॉब ऑन द रोस्टेड इन द चारकोल ब्रेजियर ऑन द पेवमेंट। सो लैंग्वेज थोड़ी यहाँ पे ट्विस्टेड है, बट इट इज बेसिकली भुट्टा, जो भुट्टा हम लोग खाते हैं वही उन्होंने भुट्टा लिया। चारकोल ब्रेजियर मतलब उसको हम कोयले के वहाँ पे कोयला होता है उसमें उसे भूनते हैं, तो वहीं पे उन्होंने कॉर्न लिया, उसके ऊपर सॉल्ट चिली पाउडर था। उसके बाद उन्होंने कपल्स लवर कॉमिक ली, एक बुक है ये कपल ऑफ लवर कॉमिक, एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, दिस इज ऑल्सो अ बुक। All of this I washed down with Coca-Cola and a nauseating orange drink and feel a much better। तो अब ये सब जब उन्होंने लिया, खाया, पिया, देखा, इस सब के एंड में उन्होंने कोका कोला और nauseating ड्रिंक ली, ये सबको वॉश्ड आउट करने के लिए। वॉश्ड आउट एक फ्रेज है यहाँ पे जो यूज हुआ है। आई कंसिडर वॉट रूट शुड आई टेक, तो ये अब उन्होंने स्ट्रीट बता दी हमें मंदिर बता दिया, स्तूपा बता दिया, स्ट्रीट बता दिया। अब वो हमें ये बोल रहे हैं कि अब उन्हें घर वापस जाना है, तो अब वो ये सोच रहे हैं कि किस रूट से घर वापस जाऊं। तो वो बेसिकली रहते दिल्ली में है और अभी वो काठमांडू में है। If I am propelled by enthusiasm for travel per se means by myself only, अगर मेरे अंदर और enthusiasm है घूमने का, तो I must go with a bus और ट्रेन टू पटना। तो वो कहते हैं कि जैसे काठमांडू अगर यहाँ पर है, तो अगर मेरे पास अभी भी टाइम है या फिर मेरे को मन है करने का, तो पहले मैं बस से पटना आ जाऊँ, पटना के बाद मैं गंगा पे सेल करूँ, गंगा जो रिवर है जैसे बनारस में है तो मैं बनारस जाऊँ, गंगा पे सेल करूँ, वहां से इलाहाबाद जाऊँ, इलाहाबाद से यमुना होते हुए आगरा एंड देन दिल्ली। तो इस तरह का उन्होंने कुछ रूट बनाया है कि सबसे पहले वो काठमांडू में है, फिर वो पटना जाना चाहते हैं, उसके बाद पटना के बाद वो बनारस में अपना गंगा पे सेल करेंगे, वहां से इलाहाबाद अब प्रयागराज जिसको हम कहते हैं इलाहाबाद, उसके बाद वहां से आगरा और फिर दिल्ली। तो ये उन्होंने कुछ रूट बनाया है, लेकिन क्या वो इस रूट को फॉलो करते हैं, लेट अस सी। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक, वो कह रहे हैं मेरा मन तो है ये सब करने का, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे घर की याद आना शुरू हो गई है। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को समझाया कि टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, उन्होंने अपने आप को समझाया कि इस आखिरी दिन है अगस्त का, चुपचाप एक टिकट लो और चुपचाप घर चले जाओ। So I entered the Nepal Airlines office and bought a
टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, उन्होंने कल की फ्लाइट के लिए टिकट ले ली और टिकट लेने के बाद अपने होटल पे आ गए। I look at the flute seller standing in the corner of the square. तो अब हमें ये एक नया यहाँ पे इंसिडेंट मिलता है। जब वो आ गए वापस आ गए मतलब अपने होटल में, तब उन्हें यहाँ पे एक बांसुरी बेचने वाला दिखता है जो कॉर्नर में खड़ा होकर बांसुरी बेचे जा रहे हैं। In his hand is a pole with an attachment at the top of 50-60 basuris protrudes in all directions like a quill of porcupine. So what does this mean? This is a very important line. यहाँ पे basically एक पोल है। पोल मतलब जो हम लोग बांसुरी शरीर को देखते हैं, अपने हाथ में बांस सा रखते हैं, उसके ऊपर से कई सारी बांसुरीज उनकी ऐसे निकल रही होती हैं। तो इससे उन्होंने किसको सिंबलाइज किया? हमने जो पॉर्क्यूपाइन होता है, एक पॉर्क्यूपाइन ऐसे होता है जिसके ऊपर कांटे होते हैं, तो इससे उन्होंने ये सिंबलाइज किया है कि जैसे एक पॉर्क्यूपाइन के ऊपर कांटे हर डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, उसी तरह जो बांसुरी वाले की जो बांसुरी थी वो उसने कुछ इस तरीके से लगाई हुई थी, ऐसे करके, ये देखिए ऐसे हर डायरेक्शन में, वो पॉर्क्यूपाइन की तरह लग रही थी। they were made up of बैम्बू। सो ऑब्वियसली बांसुरी तो बैम्बू से ही बनी है। और हमें किस किस तरह की इसके पास बांसुरी थी ये वाली बात देखनी है। क्रॉस फ्लूट्स, रिकॉर्डर्स, ये सब बांसुरी के नाम जो डिफरेंट टाइप के इसके पास क्रॉस फ्लूट्स थी, रिकॉर्डर्स थी। अब वो क्या कर रहा था वो फ्लूट सेलर? फॉर टाइम टू टाइम ही स्टैंड द पोल ऑन द ग्राउंड, वो अपने पोल जिस पे सारी फ्लूट रखी थी उसको ग्राउंड पर रख देता था। एंड would select a flute and played for few minutes. तो वो एक फ्लूट निकालता था, बांसुरी निकालता था और उसको बजाना शुरू कर देता था। Flute rises clearly above the noise of traffic and the hawkers' cries. तो अब जैसे ये जगह है, मान लीजिए यहाँ पे रोड भी होंगी, यहाँ पे होटल है और यहाँ पे वो बांसुरी वाला खड़ा है। तो जब ये बजाता था बांसुरी, तब इसकी बांसुरी की आवाज मतलब इतनी अच्छी होती थी कि जो नॉइज है वो भी इसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाती थी। कितनी भी नॉइज हो लेकिन फिर भी हर आदमी इसकी बांसुरी को सुन पा रहा था। तो उसके बाद वो बोलता है, he played it slowly, meditatively, without excessive display. यहाँ पे वो बोल रहे कि अपनी बांसुरी को बहुत आराम से, धीरे से, मेडिटेटिवली, मतलब अपनी ब्रेथ पर कंसंट्रेट करते करते सब अच्छे से बजा रहा था, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले। और डिस्प्ले शो ऑफ नहीं कर रहा था, अपने कस्टमर्स को बुलाने के लिए वो शो ऑफ नहीं कर रहा था, उसे बस मन था बजाने का, इसलिए वो बजाया जा रहा था। He does not shout out his wares, मतलब वो अपनी चीजों को बेचने के लिए चिल्ला नहीं रहा था कि मेरी बांसुरी ले लो या फिर मैं आपको देता हूँ, कुछ भी। मतलब वो ऐसे जैसे दूसरे हॉकर्स अपनी चीजों को सेल करने के लिए बोलते हैं, वो वैसे कुछ नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ बांसुरी बजा रहा था। Some on the other occasionally he makes a sale, but in a curiously off-handed way, as if it was incidental to his enterprise. अब कभी कभी उसकी सेल भी हो जाती थी, जो लोग बांसुरी सुनते थे उनका मन कर जाता होगा बांसुरी लेने का, तो वो ले लेते थे। लेकिन बांसुरी बेचना उस बांसुरी वाले का मेन मोटिव नहीं था। वो बांसुरी लेता भी था तब भी वो इतना खुश नहीं होता था कि चलो मेरी बांसुरी बिक गई, क्योंकि उसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था। इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज मतलब इट वाज नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर हिम। Sometimes he breaks off to talk the fruit seller. कभी कभी बांसुरी बजाना बंद करता था और अपने आसपास के जो फ्रूट सेलर थे उनसे बात करता था। I imagine that this has been his pattern for years. तो मतलब ऑथर ये सोचते कि यही उसके दिनचर्या रहा होगा, कई सालों से वो यही कर रहा होगा। अब हम नीचे देखते हैं। I find it difficult to tear myself away from the square. अब वहाँ पे ऑथर्स ये कह रहे कि मैं उसकी जो आवाज सुन रहा था उस धुन को, अब मेरा मन नहीं था कि मैं उस धुन को छोड़ के वापस अपने रूम पे जाऊं। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी। जब भी ऑथर जो है वो फ्लूट की म्यूजिक सुनते हैं, उन्हें हमेशा ऐसा होता है कि वो अपने आप को उससे डिटैच नहीं कर पाते हैं। इट इज एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड। मतलब फ्लूट उनके हिसाब से बहुत यूनिवर्सल है, मतलब हर कल्चर में आपको फ्लूट मिल जाएगी। और पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर मतलब फ्लूट ही है, मतलब सिंपल एक फ्लूट है लेकिन उसको बजाने के कई तरीके हैं, उसके साउंड बहुत पर्टिकुलर है। अगर आप एक भी चीज ऊपर नीचे करते हैं तो उसकी साउंड चेंज हो सकती है। देयर इज नो कल्चर दैट डज नॉट हैव अ फ्लूट। तो वो यहाँ वो बताते हैं कि ऐसा कोई कल्चर नहीं है जिसमें फ्लूट नहीं हो। कुछ वो एग्जाम्पल देते हैं फ्लूट के, जैसे रीद ने,
the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep basuris of Hindustani's classic music, the clear और breathy flutes of South America, and the high-pitched Chinese flutes. ये सब जो है नाम है different types of flutes के, सब है बांसुरी, पर दूसरे दूसरे कल्चर्स में इनको किस किस नाम से बोला जाता है ये उन्होंने ये बताया है. Each has its own specific fingering and compass. Fingering मतलब हम जब बांसुरी बजाते हैं तो देखते हैं उसमें फिंगर्स की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. किस होल को कब बंद करना है, किस होल को कब खोलना है. अगर एक भी होल ऊपर नीचे अगर हम खोल देते तो हमारी जो वॉइस है वो चेंज हो जाती है. तो यही बता रहे हैं कि डिफरेंट जो बांसुरी बजाने के लिए डिफरेंट फिंगर्स की मूवमेंट है. कंपास मतलब उनकी रेंज भी अलग है. कोई बहुत हाई पिच्ड है, कोई बिल्कुल स्लो चलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है. So it weaves out its own association. मतलब जो साउंड की अपनी अलग एसोसिएशन है. अगर कोई बहुत तेज वाली है पिच की तो हो सकता है वो चाइनीज फ्लूट हो. कोई बहुत धीरे धीरे बज रही है इसका मतलब वो साउथ अमेरिका की फ्लूट है. लेकिन फिर भी yet it hears any flute it seems to me to be drawn into the commonality of the mankind. मतलब फ्लूट की साउंड में डिस्टिंक्ट है वो फ्लूट की साउंड हर जगह, लेकिन फिर भी ऑथर को ये लगता है कि इट इज द कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड. कॉमनैलिटी मतलब वो कॉमन है हर मैनकाइंड के, हर कल्चर में फ्लूट कॉमन है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि हाउ फ्लूट कैन ड्रॉन यू इनटू द कॉमनैलिटी ऑफ मैनकाइंड. तो इसका आंसर ये है कि फ्लूट की साउंड ऑफ एनी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नेवर डिस्क्रिमिनेट्स on the basis of culture, religion, caste. It is same for all. It heals every soul. It smooths every souls. And it is the same it is similar to the sentence of a human voice. Like when we speak, we need to pause somewhere. We cannot speak thoroughly throughout the day. We need to take some pauses. Same like the breath we are exhaling in the flute needs to be stopped, then to be moved, then stopped. So it is a commonality of all mankind that I can be so affected by few familiar phrases. मतलब जैसे आप एक गाना है, मान लो कोई बॉलीवुड का, उसकी ट्यून को एक आदमी ने फ्लूट पे बजाया तो हम लोग गेस करने लगते हैं ना कि ये कौन सा गाना है. सेम वही ये बोल रहे हैं कि आजकल जो ऑथर है वो भी फ्लूट के हर गाने को गेस कर पाते हैं और इससे वो सरप्राइज हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो बहुत सालों तक जो थे वो अब्रॉड में रहे, हो सकता है अपने गानों से वो दूर रहे हो, उतना उनके टच में ना रहे हो, लेकिन फिर भी अगर वो आज उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं तो वो बहुत सरप्राइज होते हैं इस चीज़ों पे. I have returned to home after a long absence abroad. I have hardly noticed such details, but I am certainly now invested them and the significance है. मतलब पहले वो इतना दिमाग नहीं देते कि जो फ्लूट बजा रहा है वो ये साउंड हो सकता है या फिर वो ये गाना हो सकता है, लेकिन जब से वो अब्रॉड से आए हैं तब से वो इन सब चीज़ों पर बहुत दिमाग देते हैं. तो यहाँ पे हमारी काठमांडू की जो प्रॉपर एक स्टोरी थी वो खत्म हो गई है. ये एक एक्सर्प्ट है जो हेवन लेक से लिया गया है, एक जो बुक है जो विक्रम सेठी ने लिखी है. इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब.